میں حقی تھوڑی بات نوکری رہے سن گھر دی ملے سے میرے تو بعد سارے بہت ہی معزز مہمان چودھری اعجاز حسین جڑوی صاحب وہ تشریف فرمائے ملک دی نام ہستی ہے ہر کسی کو پتہ ہے مالک نے اس طرح اتنی انہوں نے سارے تعاون کیتے پاک نے سلامت رکھے جزاک اللہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ آواز بلند صلوات تلاوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی اگر تھکے نہیں ہے تو صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ہم نبی در حلتا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی سبحان اللہ۔ المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زیر المواحدین حبر اللہ المتین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبد اللہ صد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ سبحان اللہ۔ بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ سے دس پھیرے سلامت رہیں، صداباد رہیں، سوائے مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ حسین بادشاہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ کی جو حاجات ادار جو اپنے دل میں لے کر آیا ہے مالک سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک سب کے درجات بلند عطا فرمائیں۔ اعزاز بات شروع کریں جی۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر جناب کی نوکری کرنی ہے، توجہ کرنا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں اب 1.25 بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم مانتے ہیں ان کے 72 بھی 9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جناب کا مزاج ہوا ویسی نوکری ہوگی۔ 4 مصرے پڑھ کے جناب کا مزاج دیکھتے ہیں۔ تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے۔ بسم اللہ۔ خوبصورت آپ نے مجھے داد اور دعا دے دی اور خوبصورت آپ سماعت فرما رہے ہیں، تھوڑی توجہ کرنا اور بات آپ کے دل میں اتارنے لگا ہوں۔ تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے، ذات توحید کا بندوں سے تقاضا کیا ہے۔ بسم اللہ جناب۔ تاجر خان دعا فرمائیں گے۔ تم نہ سمجھو گے مشیت کا، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، پھر بات آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ اگر بات آپ کے دل میں اتر جائے گی نا تو پھر آپ سمجھیں گے جتنی بھی داد اور دعا بیٹے کو شاباش دینا وہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے۔ بابا جان تشریف فرمائیں سے دعا لینی ہے۔ تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے، ذات توحید کا بندوں سے تقاضا کیا ہے۔ شجرہ مشکوک رہا اللہ بھی خفا، لعنت کی سند بغض حیدر میں بتا اس کے سوا رکھا کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے بول سکتے ہو سے بولو حیدریہ۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب، کیا بات ہے، مولا زندگی کر جی آپ سلامت رہیں۔ شجرہ مشکوک رہا اللہ بھی خفا، لعنت کی سند بغض حیدر میں بتا اس کے سوا رکھا کیا ہے۔ آپ سلامت رہیں، حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی توجہ ہو گئی، ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کوئی ذاکری منوانے والا چکر نہیں ہے، آپ سب میرے اپنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو ذرا بات کا وزن کیجئے گا، اس کے مطابق مجھے دعا کر دینا۔ ممبر پہ تشریف فرما تھے سرکار مرتضیٰ، ممبر پہ تشریف فرما تھے علی بادشاہ، خطاب کر رہے تھے تو ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا سرکار ایک سوال کرنا ہے، اس امید پر کہ آپ جواب دیں گے۔ علی فرماتے پوچھ۔
उसने कहा सरकार ये जो आपके सीने में इल्म है ये कहाँ से आया? मुझे दुआ करते रहना। आपके जो सीने में इल्म है बाबा जान दुआ फरमाएंगे, कहाँ से आया? अली फरमाते मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। अल्लाहु अकबर। बहावलपुर में तेरे मयार सलाम। बिस्मिल्लाह जनाब। क्या बात है, क्या बात है। ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। जितना भी इल्म है मेरे सीने में ये सारा लुत्फा रहे जनाब। नौकरी पसंद आ रही है माशाअल्लाह। सदा सलामत रहे। अदीब भाई तवज्जो फरमाएंगे। ये कहाँ किसी मौला ने आज कबूल फरमाया जी। मौला सवाल कहाँ से आया? अली फरमाते फख्र है मुझे इस बात पर कि मेरे सीने में जो भी इल्म है ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। वो बंदा देख के कहते सरकार फिर आपको मानना पड़ेगा ये इल्म आपका जाती नहीं, सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। इल्म आपका जाती नहीं, लवाब रसूल चूसने का असर है। बुजुर्ग मुस्कुराते रहे, उनका मुस्कुराना मेरे लिए दाद है। जवान जवानी से फायदा लाजमी लेना और हाथ उठा के मेरे मुर्शिद अली को सलाम लाजमी करना। अली फरमाते मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये लवाब रसूल चूसने का असर है। वो बंदा कहते सरकार आपको मानना पड़ेगा ये इल्म आपका जाती नहीं, सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। अली बादशाह उस बंदे की तरफ देख के फरमाते हैं यही तो मैं जमाने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ। ओ दुनिया वालों, अभी तक सिर्फ रसूल का लवाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। अल्लाह अकबर। हाथ पे चमके मुर्शिद अली राशिद क्या कहने हुसैन बादशाह राज़ी जिंदगी करे माशाअल्लाह। वाह वाह। अभी तक सिर्फ रसूल का नवाब बोला है, वाह। लहू तो बोले ही नहीं। क्या कहने। जल्दी से आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाना है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, क्योंकि छठे बादशाह का फरमान है जो बंदा मेरे दादे अली का नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अली फरमाते अभी तक सिर्फ रसूल का लवाब बोला है, अभी तक लहू तो बोला ही नहीं। वो बैठा दूसरा बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा सरकार मैंने भी सवाल करना है। अली फरमाते तू भी पूछ। वाह। इसने कहा सवाल सरकार मेरा ये है कि अगर कयामत के दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? अगर कयामत के दिन अली बादशाह आपकी इमदाद की मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? क्या फायदा उस बंदे का आराम छोड़ के मजलिस में आने का जिसके पास हाथ में उठा के मेरे मुर्शिद अली को सलाम न कर सका। वो बंदा कहता सरकार अगर कयामत के दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? अली फरमाते हैं जहां अमाल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वहाँ अली तुम्हारा इंतजार करेगा, जिधर अमाल तुमने होंगे वहाँ अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वो बंदा कहता सरकार कयामत के दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, बेटे को नहीं पता होगा बाबा कहाँ है। तो इस नफ्सा नफ्सी के आलम में कश्मकश में आपको कैसे पहचानने, अपनी को निशानी बता दो। बहुत बड़ी जुमला है, बहुत बड़ी बात है आप सब बड़े लोगों के लिए। यार झोलियों में है अगर बात की समझ आ गई तो हाथ उठाना और मेरे मुर्शिद अली को सलाम लाजमी करना। इसे जुमले की समझ आ गई और फिर भी वो हाथ ना बुलंद कर सका, वो अंदर के खतीब को छुरी मार के मुझे इज्जत हुसैन की कसम जख्मी कर देगा। वो बंदा कहता सरकार कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इस माहौल में हम आपको कैसे पहचाने, अपनी को निशानी बता दो। अली फरमाते कयामत के दिन फिक्र न कर, तुझे मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। वाह। कहते सरकार अगर वाकई तराजू आपके हाथ में होगा तो अगर आपके किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल आई तो आप क्या करेंगे? अगर आपके किसी मुहिब की, आपके किसी जिया की मानने वाले की नेकियां कम हुई और बुराइयां ज्यादा निकल आई तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो अली बादशाह से मुवद्दत रखता है, जो बास मौला के परचम के नीचे दिए जलाता है, वो बंदा सर उठा के बैठे मेरी बात का वजन करे। वो बंदा कहता है सरकार अगर तराजू आपके हाथ में होगा कयामत के दिन अगर आपकी किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल आई और नेकियां कम हुई तो आप क्या करेंगे? अली फरमाते हम फरिश्तों को हुक्म देंगे इसकी नेकियां उतार कर एक तरफ हमारी विलायत रखो, एक तरफ इसकी बुराइयां रखो, एक तरफ हमारी विलायत रखो, एक तरफ इसकी बुराइयां रखो। अली फरमाते जब हमारी विलायत आएगी फिर हम देखेंगे तुम्हारी बुराइयां जहन्नम लेकर जाती हैं या हमारी विलायत जन्नत लेकर।
अल्लाह अकबर जेड़े बोल सकते हो सारे बोलो हैदरी। फिर हम देखेंगे तुम्हारी बुराइयां तुम्हें जहन्नम लेकर जाती हैं या हमारी विलायत जन्नत लेकर जाती है। लुत्फ है बात का, क्या कहना फिर हम देखेंगे तुम्हारी बुराइयां तुम्हें जहन्नम लेकर जाती हैं या हमारी विलायत जन्नत लेकर जाती है। पूरे कुरान में जिन वलियों की विलायत का अल्लाह ने जिक्र किया है ना वो 3 है। पापा जी आप बात की तायद फरमाएंगे, अगर आप बोल पड़े तो मेरी बात पे थैंटिक होने की मोहर लग जाएगी। माशाअल्लाह। पूरे कुरान में जिन वलियों की विलायत का अंकल जी अल्लाह ने जिक्र किया वो 3 है। कौन से? पहले वली अल्लाह है, दूसरे वली रसूल हैं और तीसरे वो हैं जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। क्या बात। अल्ताफ भाई जो पहले वली हैं अदीब भाई वो नजर नहीं आते। जब 73 फिरकों के उलमाए कराम से पूछा गया कि जब अल्लाह देखा नहीं, आपने देखा है अल्लाह को? देखा है? नहीं। लम्स किया अल्लाह के साथ? देखा नहीं ना। जब पूछा गया सबसे कि जब देखा नहीं, लम्स नहीं, अल्लाह का कभी नजारा ही नहीं किया तो मानते क्यों? बहुत बड़ा जुमला है आप सब बड़े लोगों के लिए। मैं देखूंगा कौन सा बंदा देखने आया कि रश कितने आज और कौन सा बंदा विलायत के मोती चुनने आया है। तो विलायत का खरीदार बन के आया, उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। जब 73 फिरकों के उलमाए कराम से पूछा गया कि जब अल्लाह देखा नहीं, नजारा नहीं किया, लम्स नहीं किया, फिर मानते क्यों हो? सब उलमाओं के पास सिर्फ एक ही जवाब था कि हमारे पास मयार है हसनैन के नाना। हम मुस्तफा की जुबान पे इतना यकीन करते हैं कि हमने उसके कहने पे सिर्फ बिन देखे को माना हुआ है और सजदे में गिर पड़े हैं। हमारा भी तो जनाब से यही शिकवा है, हमारी भी तो जनाब से यही लड़ाई है कि जिस मुस्तफा के कहने पे तुमने बिन देखे को माना हुआ है और सजदे में गिर गए हो, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के बाजू बुलंद करके कहा था अल्लाह के मन कुन तुम मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। क्या बात। मौला जिंदगी करे। बस हो गया मेरे हिस्से का फजाइल। 2 जुमले मसाइब के पढ़ने हैं। बीबियां राजी हो जाएं जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। तो हमारा इल्म सुनने नहीं आती, खिताबतें सुनने नहीं आती, शाम से आती है बस यही सुनने आती है कब हुसैन का जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ कैसे गई। हाय लाजमी किया करो, आंसू आपके बस में नहीं होते, हाय आपके बस में होती है, हाय उनसी किया करो। जंगे नहरवान जब फतह हुई ना बाबा जन, जंगे नहरवान की जब फतह हुई तो मालिक अश्तर ना जंगी कैदियों को लेके अली बादशाह की बारगाह में आए। यूं सारे कैदी अली बादशाह की निगाह के सामने खड़े हैं। अली ने कैदियों को देखना शुरू किया। एक कैदी के चेहरे पर अली की निगाह पड़ी, अली की आंखें न रही, कुछ सावन के बादल बन गए। मालिक अश्तर रो के पूछते हैं मौला इस कैदी को देख के रोते क्यों हैं? रो के अली कहते हैं मालिक तू नहीं जानता इस बेहया को शिमर कहते हैं। अल्लाह अकबर। हाय की तोड़ी हाय दी गवाह बन गई, अली की जख्मी थी, तू नहीं जानता ये जो सामने बेहया खड़ा इसे शिमर कहते हैं। अली फरमाते मालिक कैदियों को खाना खिला, पानी पिला, कल इनसे मुलाकात करेंगे। सुबह फजर की नमाज के वक्त बाबा जान ये दोनों भाई हसन और हुसैन जिंदान के दरवाजे के सामने से गुजरे। उसी जिंदान की बिला तशबीह शिमर सलाखें पकड़ के खड़ा हुआ था। 7वें कदम पे हसनैन पहुंचे, पीछे से शिमर ने आवाज दी। तो शिमर ने आवाज दिया ना, अगर दिल पे असर करे तो हाय लाजमी करना। 7वें कदम पे हसनैन पहुंचे, पीछे से शिमर आवाज दे के कहता है हुसैन बादशाह। अल्लाह अकबर। हुसैन बादशाह चलते हुए हुसैन के कदम रुके, हसन का बाजू हिला के कहते हसन वो देखना मुझे शिमर बादशाह बुला रहा है। हसन देख के कहते हुसैन हमारा इससे क्या वास्ता, हमारे बाबा का जंगी कैदी है, बेगैरत है, चल आ घर चलते हैं। हसन से बाजू छुड़ा के यूं बड़े भाई के सामने हाथ बांध के कहता है हसन आप सही कह रहे हैं, आपका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, आपका इसके साथ कोई वास्ता नहीं। चलते 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 हुसैन जिंदान के दरवाजे पे आए, शिमर को देखा। हुसैन फरमाते मैं हुसैन हूँ, क्या कहना चाहता है? हाथ बांध के बिला तशबीह कहता है हुसैन मैंने सुना है आप बादशाह हैं। हुसैन फरमाते तूने सुना नहीं, मैं बादशाह हूँ, काम बता। कहता बाबा से सिफारिश कर मेरी कैदें आजाद करवा।
तारीफ कहती है जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन कूफा की धरती पर तेज कदमों से चला। चलते 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 हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। दूर से अली ने आते हुए देखा ना हुसैन को। मालिक इश्तर से कहते हैं, मालिक इश्तर मस्जिद खाली करा, मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब हैं। रोते 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 हुसैन बाबा के मिंबर के करीब आए। हुसैन ने कुछ कहा नहीं, पहला पहला जुमला हाथ बांध के कहता है, बाबा तुझे मेरी बहन ज़ैनब की चादर का वास्ता। अल्लाह अकबर। अली ने हुसैन को गले से लगाया। अली ऐसे है जैसे पहाड़ से पानी आता है। मिंबर से नीचे आके हुसैन को गले से लगा के कहते हैं, गैरों वाली बातें क्यों करते हैं, हुसैन काम बता। यूं हाथ बांध के कहते हैं, बाबा तुझे मेरी बहन आलिया की चादर का वास्ता, शिमर की कैदी आजाद करवा। अली कहते हैं, मालिक अकेला शिमर नहीं, सारे कैदी आजाद कर। मेरे हुसैन ने कौन सा रोज रोज मांगना है, सारे कैदियों को आजाद कर दे। मालिक इस तरह कैदी आजाद करने के अली बादशाह हुसैन बादशाह का बाजू पकड़ के कहते हैं, हुसैन जब ये शिमर गुजरे ना, इसे अपना ये एहसान याद करवाई कि इसकी कैदें तेरी वजह से आजाद है। चलते 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 हुसैन जिंदान के दरवाजे पे आए। कैदी गुजरते रहे, हुसैन का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, अल्लाह रासी का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, बेवतन का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, प्यासे का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, बेकफन का सलाम करते रहे। सब कैदियों के गुजरने के बाद आखिर में शिमर गुजरा। हुसैन ने शिमर का बाजू पकड़ा। शिमर देख के कहते, हुसैन मैं आजाद नहीं। हुसैन फरमाते, परेशान ना हो, तेरी वजह से सारे आजाद हैं। फिर हुसैन बादशाह मुझे रोका क्यों? जो 3 सवाल हुसैन बादशाह ने किए ना शिमर से, वो 3 सवाल नहीं है, 3 खंजर है जो अवतार के दिल पे चल जाने हैं। हुसैन शिमर को देख के कहते हैं, शिमर प्यासा है, पानी पिलाऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शिमर प्यासा है, पानी पिलाऊं? शिमर पैदल है, सवारी दूं? शिमर ज़्यादा राह नहीं, कोई दिरहम दिनार दूं? कहता नहीं हुसैन बादशाह, प्यास भी नहीं लगी, दिरहम दिनार भी नहीं चाहिए, पैदल हूं, सवारी भी नहीं चाहिए। हुसैन फरमाते हैं, फिर एक लम्हा रुक, मैं ततहीर की हवेली से होके आता हूँ। सदरुद्दीन के ज़मीनी कहते हैं, जैसे ही हुसैन बादशाह लौटे ना, हुसैन के हाथों पे एक छोटा सा रुमाल था। हुसैन ने रुमाल शिमर को दिया। हुसैन फरमाते हैं, खोल के देख। शिमर ने खोल के देखा, खोल के देखा, देखता क्या है, 2 छोटे छोटे कानों के दूर हैं। शिमर कहते हैं, हुसैन बादशाह ये दूर मुझे क्यों देखे हैं? हुसैन फरमाते हैं, तोहफा है मेरी तरफ से रख, मुझे क्यों देते हैं हुसैन बादशाह दूर? हुसैन फरमाते हैं, मुझे पता है घर में तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसे जाके ये दूर शिमर मेरी तरफ से तोहफे में देना। और शिमर याद रखी, दुश्मनी बेटों से होती है, बेटियों से नहीं होती। और कल मेरी 4 साल की बेटी होगी, तो मेरी गर्दन पे खंजर चलाता रहेगा, वो तेरी मिन्नतें करती रहेगी। और शिमर उससे कुछ ना कहना, वो सैयद ज़ादी है।